Hello students, welcome again to my channel. In today's lecture we will solve the questions of exercise 13.1 and here is the question number 1. What is the statement? First of all I will read it for you. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 सेंटीमीटर डीप इज़ टू बी मेड. एक प्लास्टिक बॉक्स हमने बनाना है एंड इट्स डायमेंशंस आर दिस दिस एंड दिस. और ये क्या डायमेंशंस हैं आपने इनको थोड़ा नोटिस करना है. दिस इज़ द लेंथ, दिस वन इज़ द ब्रेड्थ एंड डीप मीन्स डेप्थ. डेप्थ डिनोट द हाइट. सो दिस इज h is to be made. It is opened at the top. It is opened at the top means no plastic sheet is used for the top part. Means we have to make an open box with plastic sheet. Means it has only 5 sides, 4 walls and the base of the box. Ignoring the thickness of the plastic sheet. प्लास्टिक शीट आपका कितना भी थिक हो हमने उसको इग्नोर कर देना है. एंड डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स एंड द कॉस्ट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. सबसे पहले जो हमारा स्टेप होना चाहिए, वी मस्ट रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि हमें एक बॉक्स बनाना है which has only 5 sides. Its length is 1.5 meter, its breadth is 1.25 meter and its height is 65 centimeter. अब यहाँ पर एक बात आपने स्टार्टिंग में ही ध्यान कर लेनी है. You have to take care that all dimensions must be in same unit. These two are in meter, this is in centimeter and cost is again given in meter. तो it's better कि we convert all the dimensions into meter. तो we will convert height into meter here and then we will solve. What will we write? We will write the length of plastic box. Length of plastic box is equal to L is equal to 1.5 meter. Then breadth of plastic box which is denoted by B is 1.25 meter. It will remain as it is because we have not to change its unit. Then height or depth I will say because it is a deep box na. The depth of plastic box we will denote it by h and it is equal to 65 centimeter. Now we will convert it into meter. How? Centimeter into meter. How will we convert centimeter into meter? Divide by 100. So it will be 0.65 meter. Clear? Now we have all 3 dimensions. The first part is the area of sheet required for making the box. यहाँ आपने mention करना है because it is opened at the top. Because box is opened at the top, okay, so it has only 5 faces. It has only 5 surface. I will prefer you must write it has only 5 surfaces. Now focus at first part. It is neither total surface area nor it is कर्ड सरफेस एरिया. ना तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं ना ही हम कर्ड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं. इंस्टेड वी आर कैलकुलेटिंग 5 सरफेसेस एरिया. क्लियर? द एरिया ऑफ शीट ना, तो शीट मीन्स भाई जो जिन 5 सरफेसेस पर आपकी शीट लगेगी उन्हीं का एरिया आपने कैलकुलेट करना है. तो वी विल राइट द एरिया ऑफ शीट फॉर मेकिंग बॉक्स. ओके अब यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यू हैव टू टेक केयर विच फॉर्मूला वी शुड अप्लाई. तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ 5 साइड्स. सो LB will be included only once. It is LB plus these 2 sides 2 times of BH plus 2 times of HL. देखो अब यहाँ पर बिकॉज वी आर सॉल्विंग विद डेसिमल ना, तो आप एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ और इजी कर सकते हो कि यू कैन टेक 2H
common from these two also, that first one is LB plus from these two take 2H as common, it will be, देखो 2H बाहर आ गया, it will be B plus L. Now put the values of length, breadth and height here and solve the question. तो area will be, ओके, कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी सी आपकी लेंथी है आपकी कैलकुलेशन, क्लियर. तो यू कैन राइट इट एज 15 बाय 10 मीटर, इट इज़ 120 बाय 100 मीटर एंड इट इज 65 बाय 100 मीटर. गॉट इट. नाउ वी विल सॉल्व विद LB. LB इज 15 बाय 10 इंटू, now there is no need of bracket here, 125 by 100 plus, this is the product of these two, plus 2H, 2 into H means 65 by 100 into B plus L or L plus B doesn't matter, B जैसे था, it is 125 by 100 plus L is 15 by 10. Is it clear up to now? न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, 15 5 जा 75 कैरिंग 7, 52 जा 30 प्लस 7 37, 3 15 1 जा 15 प्लस 3 1875 बाय 1000 प्लस ये दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, 2 into 65 will be 130 by 100 into, here we will take 100 as LCM, 100 cancels 100, it will be 125, 10 10 जा 100 एंड 10 को जो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 150. 0 कैंसल्स 0 हेयर, यहाँ आप कैंसिल नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखें बिकॉज डिवीजन विल बी इजी ना. तो इट विल बी 1875 बाय 1000 प्लस 13 बाय 10 इंटू देयर सम विल बी 5 7 इंटू 2 275 बाय 100. नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, add in this and then convert in decimal. 1875 by 1000 plus 13 5 ja 65 carry 6, 13 7 ja 91 clear plus 697 carrying 9, 13 2 ja 26 plus 9 it will be 35 by 1000. Now denominator is same, we will add only numerator here. 5 5 are 10, 1 7 7 14 plus 1 15, 1 8 plus 5 13 plus 1 14, 1 3 plus 1 4 plus 1 divided by 1000, 0 cancels and this is 5.45 meter square. This is the area of plastic sheet required for making the box. This is the first part of our question. Now I will erase from here. सेकेंड पार्ट क्या है, द कॉस्ट फॉर इट, मतलब कितना खर्चा हमारा आएगा. इफ़ 1 मीटर स्क्वेयर शीट कॉस्ट ₹20, बिल्कुल सिंपल, मल्टीप्लाई बाय दिस 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट 20 है तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी. तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो, अदरवाइज आप यूनिट मेथड होता है हमारा कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर इज दिस एंड कॉस्ट ऑफ दिस. तो टोटल कॉस्ट ऑफ शीट वी विल मल्टीप्लाई डायरेक्टली. Total cost of sheet will be 20 multiplied by total area, 5.45 multiplied by 20. अगर आपको अच्छा लगे देन कन्वर्ट इट इनटू इजी. आपने अपना ये देखना है कि कन्वीनियंट किस में आपको लग रहा है. अगर डेसिमल में आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा है देन कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन इंटू 20, 25 जा 100, 5 1 जा 5, 0 5 9 जा 45, it is 109 rupees total cost of the making of plastic box which is open at the top. Got it? Now we will do question number 2. It is also on the same line as of question number 1. The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Let us imagine that it is a room, then its length is 5 meter, its breadth is 4 meter and its height is 3 meter. All are in meters, so we have not to take care of the units now. Find the cost of whitewashing the walls of the room. Walls means 4 sides and the ceiling means छत
at the rate of rupees 7.50 per meter square. This question is same as our question number 1. In that question we constructed a plastic box with 4 sides and the lower part means area of 5 walls there. Here we have to whitewash 4 walls of the room and the top ceiling. Again we have to calculate the area of 5 walls, then we will multiply that area by 7.50. So I will solve this question in 2 lines only. When you will solve in your fair notebook, do it neatly. ठीक है, you will write the length of the room age 5 meter. Got it? You will write the complete statement in fair notebook. The length of the room is this, the breadth of the room is 4 meter, the height of the room is 3 meter. Because we have to whitewash, whitewash 4 walls and the ceiling of room. Got it? We have to whitewash 4 walls and the ceiling of the room. तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, टोटल एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, जितने एरिया पर हमने वाइट वॉश करना है. अगेन द एरिया ऑफ 5 surfaces, 4 walls plus floor area. Floor area is LB और 4 walls means the curved surface area whose formula is 2H into L plus B. Is it clear? Yes. Is it clear? Now we will put the values here. 5 into 4 is it right? Yes, 5 into 4 plus 2 into 3 L plus B, 5 plus 4. This is 5 plus 4. 5 4 ja 20, 2 3 ja 6, 5 plus 4 9. It is 20 plus 6 9 ja 54. That is 74 meter square is the total area. Now we have to find the cost na, and the cost of 1 meter square is 7.50. We have to find the cost of 74 meter square. So total cost of whitewashing, total cost of whitewashing will be 74 into 7.50. 74 को 75 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है हमने. 74 इंटू 75, 5 4 जा 22, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 7 4 जा 28, 2 7 7 जा 49 प्लस 2 इट इज़ 51, 0 15 5 and 5 5 5 5 0 5 5 5 0 and 1 0 from here. This is the product of 74 and 75. 1 0 from here. Now we have 2 digits after decimal, so we will put our decimal sign from right side after 2 digits, so it will be here, and the total cost will be rupees 555. Clear? We are doing 2 questions on the same line. तो अगर कभी भी आपको ऐसे 5 volts का क्वेश्चन आता है तो I think you should not forget about it. Now we will solve question number 3. This question is a little bit different from first 2 questions. So first of all we will read the statement very carefully. We will understand the concept of the question, then we will solve it. The floor of a rectangular hole has a perimeter 250 meter. Got it? There is a rectangular hole. Okay. रेक्टेंगुलर होल मीन्स ध्यान देंगे कि हमारा जो फ्लोर है, जो होल है, दैट इज क्यूबॉइड एंड इट्स फ्लोर इज रेक्टेंगुलर. ओके. द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 पर मीटर स्क्वेयर इज रुपीज़ 15,000. फाइंड द हाइट ऑफ द होल. बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये. लेट इट इज़ अ होल एंड इट्स लेंथ इज L, इट्स ब्रेड्थ इज B and its height is h. First of all we will note what is given. Clear? Listen carefully. हमें जो given है, पहले तो ये देखना है हमने कि ये जो पेरीमीटर है फ्लोर का, जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्लोर
जो है दैट इज़ ऑलवेज अ रेक्टेंगल। अगर मैं यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, दिस इज एल, दिस इज बी, दिस इज एल, दिस इज बी, और ये चारों का जो सम है दैट इज़ 250 मीटर। पहले मैं आपको एक रफ स्केच बनाऊंगी, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू इन योर फेयर नोटबुक। तो वी आर गिवन दैट पेरीमीटर इज 250। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? 2 into L plus B is 250. This is one thing which is given to us. Okay. Height is unknown to us. वैसे तो हमें length और breadth भी नहीं पता है, but height is also unknown. What is given here? Cost of painting 4 walls at ₹10 per meter square. इज़ दिस। देखो ये कोस्ट को आपने कोस्ट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपने समझना है। अभी हमने 2 क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 and 2। उनमें हमने क्या किया था? हैव ए लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड द एरिया, क्लियर, देन वी मल्टीप्लाइड द रेट ऑफ कॉस्ट, रेट ऑफ पेंटिंग या जो भी था हमारा, देन वी गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। गॉट इट? इन फर्स्ट क्वेश्चन हमने सबसे पहले क्या किया? वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शीट। ठीक है, 5 शीट्स हमने लगाई, उनका एरिया हमने फाइंड किया। 1 मीटर स्क्वायर की जो हमारी कॉस्ट थी वो क्या थी? 20 थी। तो ये रेट आ जाता है हमारा, रेट ऑफ शीट। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ तो दिस इज द रेट ऑफ शीट पर मीटर स्क्वायर। डू यू रिमेंबर? ये आपको याद आ रहा है? Firstly, I calculated the area, then I multiplied that area by the cost of 1 meter square, and then I get the total cost of the sheet. Is it clear with you or not? एक simple सा logic आप ये लगा लीजिए कि if you go to the market and if you purchase anything from the market, suppose you are purchasing some potatoes, the rate of the potatoes is I will say 20 rupees per kg. Okay, 20 rupees per kg. Listen carefully. And I purchased potatoes of ₹100. Total cost 100. I gave 100 rupees to the shopkeeper for the potatoes at the rate of 20 rupees per kg. How much potatoes did I buy from him? 5 kg. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. व्हाट डिड यू डू? जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो क्या है कि आई डिवाइडेड 100 बाय 20, देन आई विल गेट द अमाउंट ऑफ द पोटैटो आई परचेज्ड इन द मार्केट. गॉट इट? मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स श्योरली आई हैव परचेज्ड 5 किलोग्राम पोटैटो. क्लियर? ये लॉजिक हमने यहाँ पर समझना है. सेम हेयर, 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. In this question, have a look. 1 meter square painting cost है ₹10. If I multiply it by total area, then I will get the total cost, and the total cost of painting is ₹15,000. Got it? Again, on the same line, if I divide total cost by cost per meter square, 10 को मैं इधर ले आती हूँ, हाँ, समझ रहे हो मेरी बात को? 15,000 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर देती हूँ, देन श्योरली आई विल गेट द एरिया टू बी पेंटेड. क्लियर है यहाँ तक? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? इसे मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ. देखो ये वैसे तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बट कई बार स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता. तो एरिया मीन्स द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर. गॉट इट? तो इन 2 बातों को यूज करके देन वी विल सोल्व आवर क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ दीज 2 रिजल्ट्स वी विल कैलकुलेट द हाइट ऑफ द होल. ओके, हाउ विल यू राइट? लेट लेंथ ऑफ द होल is equal to L meter. It is given in meter. Let breadth of the hole is B meter. Let height of the hole is H meter. Clear? We are given that perimeter of the floor, because have a look, perimeter of the floor is equal to 250 meter.
फ्लोर मैंने आपको बता दिया, फ्लोर इज ए रेक्टेंगुलर फिगर और जिसकी एल और बी डायमेंशंस हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250 मीटर। हम इसे एज इट इज़ रखेंगे, वी विल नोट दिस रिजल्ट एनीवेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो we have to paint 4 walls at the rate of 10 meter square and the total cost is 15,000। तो we know, also we know, सारी बातें आप यहाँ पहले राइट कर लीजिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का जो एरिया होता है दैट इज एक्चुअली लेटरल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, एंड इट्स फॉर्मूला इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर पेंटिंग ना, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वेयर इज ₹10 एंड टोटल कॉस्ट इज ₹15,000। क्लियर? ये सारा हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब बातें ऑल दीज वी हैव टेकन फ्रॉम आवर स्टेटमेंट। ओके, अब हम उस रिजल्ट को यहाँ यूज़ करते हैं, इस वाले रिजल्ट को, कि वी नो दैट टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है ना, 100 रुपीज़ के हमें टोटल पोटैटोज़ मार्केट से पड़ रहे हैं एंड द रेट ऑफ पर केजी इज़ 20। व्हेन आई डिवाइडेड टोटल कॉस्ट बाय रेट ऑफ 1 kg देन आई गोट द अमाउंट। सेम विद द एरिया, अगर मैं टोटल भी मान लीजिए कि मैंने 20,000 का काम किसी लेबर से कराया है ऑन एनी फ्लोर और उसका रेट 2,000 पर मीटर स्क्वेयर है, तो 2000 इंटू आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो उसने 10 मीटर स्क्वेयर पर पेंट किया। तो अब यहाँ टोटल एरिया जिसको उसने पेंट किया है वो ये है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टोटल कॉस्ट आपकी है बेटा जी 15,000, पर मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट है ₹10। नाउ हैव ए लुक, यूज दिस रिजल्ट हेयर, यस इट इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी। इस पूरी यूनिट की वैल्यू कितनी है, 250। तो इन प्लेस ऑफ दिस वन आई कैन राइट 250। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द पेरीमीटर विच इज गिवन इक्वल टू 250। तो दिस इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय एच, 0 कैंसल्स, इट इज इक्वल टू 1500। H, how can you find H now? It is very simple. H equals to 1500 upon 50. Very good. H is equal to 1500 divided by 250. 0, 25, 6 ja, that is 6 meter. So we can say that height of the hole is equal to 6 meter. Question is very easy, but you have to understand the concept first. लॉजिक आपको समझना है, बहुत ज़रूरी, बिकॉज नथिंग इज़ गिवन, नाइदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, नथिंग इज़ गिवन। सारा कंक्लूजन आपका यहाँ आ जाता है। बहुत सिंपल लॉजिक, हमारी डेली लाइफ का लॉजिक है ये। हम जो भी शॉपिंग मार्केट से करके आ रहे हैं, टोटल अमाउंट जो हमने एक्सपेंड की वहाँ पर डिवाइडेड बाय किस रेट पर हमने शॉपिंग की, तो वी कैन गेट द क्वांटिटी। यहाँ क्वांटिटी से मतलब क्या है, द एरिया टू बी पेंटेड। तो ये रिजल्ट आपने स्पेशल ध्यान रखना है, द टोटल एरिया जिस पे हमने पेंट करना है इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर। Total area means the lateral surface area. This is the formula of lateral surface area. Total cost of painting is 15,000. कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर मीन्स 1 मीटर स्क्वेयर को पेंट कराने की जो लागत है, खर्चा है, जो कॉस्ट है, जो रेट है, वो 10 रुपीज़ है। क्लियर? नाउ वी नो दिस वैल्यू बिकॉज वन मोर कंडीशन इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज 250। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500। एच इज इक्वल टू 1500 बाई 250, दैट इज 6 मीटर, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। आप इतना लिख सकते हो कि टोटल एरिया टू बी पेंटेड
ये बात हमने कहीं मेंशन नहीं की है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ. You can write here like this, because 4 walls are to be painted ना, because 4 walls are to be painted, so area of 4 walls. और यहाँ आप मेंशन कर सकते हो कि this is equal to कर्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर बीच में कर्ड सरफेस एरिया, एंड देन यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ कर्ड सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच आ जाएगा. तो ये लाइन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, बिकॉज वी हैव टू पेंट द 4 वॉल्स ओनली, नॉट द फ्लोर. क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. दिस इज द फर्स्ट एंड most important link to solve the question, that we should read the statement at least once, twice, thrice, how many times as you need. जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, you should read it again and again. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. There is a container. What is the shape of container? It doesn't matter, it is not given in the statement, but there is some paint in that container, and that paint is sufficient for this much area. Clear? This much area, इतने एरिया को वो पेंट कर सकता है, इतना पेंट उस बकेट में, उस कंटेनर में है. How many bricks obviously ईंट जो कि क्यूबॉइड होती हैं, of dimensions 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container. First of all तो आपने इस लॉजिक को समझना है. हैव ए लुक. ये जो डायमेंशंस यहाँ गिवन हैं, फर्स्ट वन इज इंडिकेटिंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक, सेकेंड वन इज द ब्रेड्थ ऑफ द ब्रिक, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ब्रिक. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस वी हैव डन इन आवर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. क्लियर? जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ 1 ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक ना. हमें कितनी ब्रिक्स को पेंट करना है, उसके लिए सबसे पहले हमने एक ब्रिक को टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है. दिस इज़ 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7.5 सेंटीमीटर. क्लियर? एंड आई इमेजिन दैट दिस इज़ द कंटेनर. कैसी भी शेप हो आपके कंटेनर की, ये बड़ा है कंटेनर हमारा. इट हैज़ पेंट कैपेबल टू पेंट अप टू 9.375 मीटर स्क्वेयर. हैव ए लुक बेटा. दिस इज़ द टोटल पेंट. This is 1 brick. We will find the area of 1 brick. Then we will divide the area painted by this paint, और उसको हम डिवाइड करेंगे by the area of 1 brick. Then we will get the number of total bricks to be painted by this paint. Got it? ये एरिया आप ये समझो कि ब्रिक इज वेरी स्मॉल. जब हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी ब्रिक्स कैन यू पेंट, इसका मतलब इसमें हम मोर देन 1 ब्रिक तो पेंट कर ही सकते हैं भाई, एक से ज़्यादा तो पेंट कर सकते हैं. तो दिस इज़ लार्जर, दिस इज़ स्मॉलर. और जब भी आप एक छोटा सा एक आइडिया ले लो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी, रिमेंबर द एग्जाम्पल नंबर 2. हमसे पूछा गया था कि कॉस्ट ऑफ टाइल, तो पहले हमने निकाला था कि हाउ मैनी टाइल्स आर अप्लाइड ऑन द टैंक ना. सेम वाज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैरी ने अपना क्रिसमस के लिए बॉक्स पर पेपर लगाए थे, तो हमने टोटल एरिया को 1 पेपर के एरिया से डिवाइड किया था. तो जब भी हाउ मैनी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी हाउ मैनी टाइप का क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम में भी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपने बिगर एरिया को स्मॉलर एरिया से डिवाइड कर देना है. यू विल गेट द नंबर. क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ? अब यहाँ एक चीज़ और है जो हमने नोट करनी है. द एरिया पेंटेड, the area covered by the paint is given in meter square and the dimensions of the brick are given in centimeter. It's better कि we will convert it into centimeter later on after multiplying by 100. First of all we will calculate the total surface area of a brick. तो I will solve it in some simple steps. The length of the brick आप लिख लीजिएगा अच्छे से. Length of the brick is 22.5 centimeter. Breadth is 10 centimeter, height is 7.5 centimeter, and I remove the decimals from here.
after inserting 10 in the denominator, it is 75 by 10 centimeter, because we have to paint a complete brick na, because we have to paint all surfaces of brick. We have to paint all surfaces of a brick. तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया? 2 into LB plus BH plus HL. Okay, 2 into LB means 225 by 10 into 10 in one bracket, plus BH, B for 10, H for 75 by 10 in one more bracket, plus HL, H for 75 by 10 into 225 by 10. Got it? 10 cancels 10, 10 cancels 10 here. This is equal to 2 into, it is 225, this is 75 plus, ये मल्टीप्लीकेशन अब यहाँ थोड़ी हमें मुश्किल हो सकती है, तो आई विल कट इट. 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, and then 5 2 जा 10 and 5 3 जा 15. Got it? It will be further equal to 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 plus 1 7, and 3 2 जा 6 divided by 4. I will convert this only in decimal है. I will add these two. 2 into 225 plus 75, it will be equal to 300. Clear? Plus convert into decimal. 4 1 जा 4, 6 minus 4 2, 7 6, 4 6 जा 24, 3 4 8 जा 32. Clear? 4 7 जा 35 and 4 5 जा 20. ये आपका डिवीजन आएगा. Just add these two. It is equal to 2 into 300 plus 168. It is 468.75. Again multiply by 2. This is equal to 5 ja 10, 2 7 ja 14 plus 1 15, 1 17, 1 plus 13, 1 2 4 ja 8 और ये 9. This much centimeter square. This is 937.50. It's okay. Centimeter square. This is the area of one brick. Clear? And area covered by the paint. Now I will rub this picture from here. यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ आ गया अच्छे से. अब हम इसको लेंगे and we will convert it into centimeter square. हाँ, what is the statement? I will read again. The paint is sufficient to paint an area of this much. ठीक है, तो what will you write? Total area painted by, total area to be painted by paint in container, paint in container is equal to how much? 9.375 meter square. Now we will convert it into centimeter. Then what will you do? Not 100. This is meter square. Meter square means meter is 2 times. Then we will multiply by 10,000. 100 into 100. ठीक है? Whenever we convert meter into centimeter, 1 meter means 100 centimeter. यहाँ मीटर आपका 2 टाइम्स आ रहा है. भाई मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर मीन्स मीटर इंटू मीटर. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10,000. 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इट विल बी इक्वल टू 9375 बाय 1000 इंटू 100 इंटू 100. 2 zeros 1 0. 93,750 centimeter square. Now question is very easy. This is the area of one brick. This is the total area painted by the paint in the container. कंटेनर में जितना पेंट है वो इतने सारे एरिया को पेंट करने के लिए सफिशिएंट है, और एक ब्रिक का केवल इतना एरिया है. तो हाउ मैनी ब्रिक्स कैन वी पेंट? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड
नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड आएगा ये क्या हो जाएगा, दिस एरिया डिवाइडेड बाय दिस वन, 93,750 बाय दिस वन. नाउ वी विल रिमूव दिस डेसिमल after inserting 100 here, so I will put 100 here, this cancels this, and we can paint 100 bricks by using the paint in the container. वैसे तो ये बहुत ईजी था, देयर इज़ नो नेसेसिटी. अगर आपका डेसिमल पे अच्छी कमांड है देन यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, अदरवाइज इट्स बेटर यू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, यूज 10 and 100 एंड देन सॉल्व. थोड़ा लेंथी होगा बट वो रॉन्ग नहीं होगा. गॉट इट. दिस क्वेश्चन इज अगेन सेम, मैं फिर से बता रही हूँ, सेम एज यूर एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2. हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट जहाँ भी आ जाए, ठीक है. एक बॉक्स में पेंट है, उससे आप ऐसी कितनी ईंटें पेंट कर सकते हो. मान लीजिए आप कवर वो रोल लाते हो जो आप अपनी बुक्स पे कवर करते हो. क्लियर. सेम साइज़ की आपको बुक्स दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी बुक्स कैन बी कवर्ड बाय दैट रोल, वो रेक्टेंगुलर है, तो हम क्या करेंगे कि वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर यूज टू कवर वन बुक ना. क्लियर. सेम साइज़ की बुक दे दी मैंने आपको, एनसीईआरटी के ही मैथ्स दे दिए. क्लियर. और मैंने आपको एक कवर रोल दे दिया, हाउ मैनी बुक्स कैन यू कवर. भाई उस कवर रोल में जितना पेपर है उससे आप कितनी बुक्स कवर कर सकते हो एक जैसी. तो हम एक बुक का मेजरमेंट ले लेंगे कि इस पर इतना लग रहा है और उसके टोटल एरिया को इस पर लगने वाले पेपर से डिवाइड करेंगे, देन वी कैन गेट द नंबर ऑफ बुक्स. तो सेम लॉजिक यहाँ लग रहा है कि भाई टोटल एरिया जो पेंट हो सकता है और उसको एक ईंट के एरिया से, एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स. क्लियर. सो इट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर. अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, गिव मी ए थम्स अप. थैंक यू.